था ना, क्या बोलते हैं, आयरन मैन टाइप कुछ बनाना था, तो ये सब चीज़ों में इनफैक्ट रॉस इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ दिस थिंग्स। रॉस इज नथिंग बट रोबोटिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी तुम लोग अभी तक रोबोट्स देखे हो या फिर यू आर गोइंग टू सी इट इन फ्यूचर, सो और दीज कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड रॉस इन दैम। तो सुयश एक बार उनको यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड शो देम अ ब्रीफ वीडियो व्हाट इज रॉस। So basically, I'm telling all the projects you made will be possible only if you know ROS. So that's my main aim of saying these things. सुयश ऑडियो नहीं आ रही। ऑडियो नहीं आ रही है क्या? नहीं, एक बार वो कर ले, स्क्रीन प्रेजेंट विद ऑडियो कर ले, इफ नहीं किया रहेगा तो। सिट ऑडियो। हाँ हाँ हाँ, सही है। Hi, and welcome to this introductory video entitled What is ROS? ROS stands for Robot Operating System, an open source programming framework for robotics whose development began in the late 2000s at Stanford University and Willow Garage. ROS is an important development in the field of robotics, which has been dramatically growing in popularity all over the world. It is applicable to a wide number of robotic systems, including mobile, industrial, and flying robots. To better understand ROS and its benefits, let's consider how robotic projects were developed before ROS existed. The kinds of commercially available robotics that we commonly associate with automobile factories and have seen move into different industries have historically involved software control systems that were proprietary and highly specialized for their intended tasks. Each system was different, lacked standardization, and as a result suffered from long development times. Building robots has traditionally been difficult because robot developers, in essence, had to reinvent the wheel with each new project. ROS changed this by creating a framework for developing robotic software that facilitates and even encourages the sharing and reuse of good ideas about how to control robots. Now, this has not been a trivial challenge. For one thing, different robots are designed to perform different tasks in different environments. It's hard to have one general-purpose software programming framework that will solve all the problems you will encounter as a robotics developer. However, ROS has maximized the utility of having open-source robotic software by addressing many of the common problems robotic developers face. Challenges such as coordinate system transformations, motion planning, communications, and sensor integration have field-tested ROS solutions available and ready to plug in. A programmer only has to download the appropriate software packages, include them as part of his robot design, and take advantage of the ROS community's knowledge and years of experience. तो ये वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है रॉस, जहाँ से मतलब सारे जितने भी ट्यूटोरियल्स वगैरह जितने भी हम लोग आगे बताएंगे तो मैं यहाँ पे मिल जाएंगे ROS.org पे। ठीक है, इंस्टॉलेशन तक भी वहाँ से मिल जाएगा। तो अभी शायद फर्दर पढ़ सकते हो तो। ओके, सो मतलब एक सुयश गो इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो बेसिकली सबने देखा ही रहेगा व्हाट इज रॉस, कि पहले जैसे जब रॉस नहीं था तो एवरी रोबोट हैड इट्स ओन सॉफ्टवेयर, सब लोग अपना अपना चलाते थे। बट थिंक जब से रॉस इन्वेंट हुआ, डिस्कवर हुआ, तो फिर तब से ओपन सोर्स बन गया, और जिसको भी जो भी पैकेजेस या फिर जो भी बॉट कुछ भी पैकेजेस यूज कर रहे हैं वो ओपन सोर्स हो रहा है। और कोई भी बॉट में हम लोग वो क्लोन करके चला सकते हैं। महेंद्र, प्लीज कैन यू म्यूट योरसेल्फ? ओके, कूल। तो फिर तो दिस इज बेसिकली रॉस, कि एवरी रोबोट यू सी हैज रॉस इन इट, तभी वो चलता है, नहीं तो यू कैन नॉट वर्क ऑन इट। सो व्हाट इज रॉस? इट्स बेसिकली लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक यू हैव विंडोज, तो तुम लोग को जैसे विंडोज के कुछ प्रोग्राम्स चलाने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है, लाइक उबुंटू भी लगता है। सेम रॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है रोबोट्स के लिए। वो नहीं रहेगा तो वो चला नहीं पाओगे। उसके बाद हाउ डज इट वर्क?
तो basically it works using nodes. What are nodes? Nodes are nothing but you can say connections. तो like there is some master node जो बाकी चीजों से connect करता है. Connections मतलब like I want to take a sensor data from some another thing, like from leader मुझे sensor data लेना है और wheels को control करना है कि जैसे obstacle है तो मुझे रोकना है robot को. तो I work through nodes. I get information from leader कि there is a wall after 5 meter and then I send it to wheels कि आगे wall है तो तुम लोग stop कर सकते हो अभी. तो दिस इज हाउ रॉस वर्क्स इन ब्रीफ. आगे बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं. दिस इज जस्ट एन इंट्रो सेशन, तो इतना ध्यान बस ब्रीफ में सुन लो. सेकेंड, रॉस बहुत सारे बाकी सॉफ्टवेयर्स को भी सपोर्ट करता है. टू अदर मेन सॉफ्टवेयर विच वी यूज आर गजीबो एंड मूविट. तो गजीबो का बाद में बताएंगे हम लोग. ब्रीफ में ये है कि गजीबो इज नथिंग बट अ सिमुलेशन एनवायरनमेंट. लाइक अब तुम लोग कोई भी बॉट वगैरह या फिर ड्रोन्स काफी ज्यादा महंगे रहते हैं, तो यू कैन नॉट कोई भी प्रोग्राम लोड करके उसको चला सकते हो. यू फर्स्ट नीड टू रन इट ऑन सम सिमुलेशन, ताकि अगर प्रोग्राम गंदा भी हो तो वो क्रैश ना हो जाए ड्रोन्स या फिर जो भी रोबोट हो तुम लोग का. तो इसलिए भी रन इट ऑन सिमुलेशन, ताकि एक बार तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि हाँ सही चल रहा है ना, देन वी लोड इट इन अ ड्रोन एंड देन उसको आगे जा सकते हैं. तो दिस इज वी यूज रॉस. दिस इज व्हाट वी यूज रॉस फॉर. And second is testing purposes as said. Fine. Guys, तुम लोग के डाउट सब बाद में क्लियर करूंगा. तो you start posting on chat if you have. Okay. Gazebo. हाँ, Gazebo तेरा. Gazebo actually, so if you see, it's a 3D environment. और ये इसको मतलब टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में बोले तो इट्स अ फिजिक्स इंजन. तो फिजिक्स इंजन एग्जैक्टली क्या है कि लेट्स से कि मेरे को एक अपना बॉट टेस्ट करना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बॉट का एक मॉडल चाहिए, और वो मॉडल के मेरे पास जितने भी उसके फीचर्स होते हैं उसको मैं एक टाइप की फाइल में डाल सकता हूँ. दैट इज कॉल्ड एज अ URDF फाइल, जिसके बारे में हम लोग आगे जाके सीखेंगे लेटर ऑन सेशन. लेकिन गजीबो क्या है कि देन यू कैन एक्चुअली इम्पोर्ट दैट बॉट और एनी एनवायरनमेंट. वो तुझे एनवायरनमेंट देगा. तो इट्स लाइक कि अगर तुम्हें एक बार एनवायरनमेंट मिल गया एंड देन गजीबो में उसके जितने भी फिजिक्स पैरामीटर्स है, लाइक विंड वेलोसिटी हो सकती है, फ्रिक्शन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे सेवरल फिजिक्स फीचर्स हो सकते हैं जो तुम्हारे एक्चुअली बॉट के परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. तो इट्स लाइक कि अ सब्सटीट्यूशन टू द रियल वर्ल्ड. अगर तुम्हें रियल वर्ल्ड में अभी नहीं करना है, या फिर यू डोंट हैव द हार्डवेयर राइट नाउ बट यू वांट टू सिमुलेट दैट व्हाट वुड हैपन इफ यू एक्चुअली यूज दैट, देन गजीबो इज द बेस्ट थिंग जो हम लोग यूज़ करते हैं. एंड गजीबो इज़ लाइक अ नोड. रियल लाइफ में जब हम लोग को उसको टेस्ट करना है तो गजीबो के बजाय हम लोग वो रियल लाइफ के जो भी एनवायरनमेंट डेटाज होंगे उसको नोड बना देंगे. तो नोड जैसे एक्सप्लेन किया था, इट्स जस्ट नथिंग बट एग्जीक्यूटेबल फंक्शन की तरह है. बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं. एक हो सकता है तुम्हारा जैसे कि लिडार सेंसर के जो रीडिंग्स आ रही हैं उसको तुम्हें लेकर देना, तो फिर मतलब एक तुम्हारे सेंसर्स का हो सकता है. वैसे ही तुम्हारा डिफरेंट जैसे कुछ एक्चुएटर्स का भी हो सकता है. तो वो नोड्स के बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे जाके नेक्स्ट सेशन. फिर टर्टल बॉट, जैसे मैंने बताया था कि बॉट्स जो होते हैं उसको हम लोग गजीबो एनवायरनमेंट में डाल सकते हैं. टर्टल बॉट एक सबसे ज़्यादा बेसिक बॉट है जो रॉस के लिए, रॉस में सबसे पहले जो बॉट आया था वो टर्टल बॉट था बेसिक. तो टर्टल बॉट का मेन यूजेज जो है हम लोग स्लैम के लिए यूज़ करते हैं. तो स्लैम एग्जैक्टली क्या है? स्लैम में साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग. उसका मतलब बेसिक मतलब ये है कि इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जो रॉस के लिए एकदम बेसिक सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि मतलब मेरे को नेविगेट करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, देन मुझे एक मैं कैसे पहुंचा. देन आई हैव टू सी कि अगर मेरे आगे कोई एक ऑब्स्टिकल है देन उसको डायनेमिकली अवॉइड करते हुए मैं पहुंचूँ पॉइंट बी. तो टर्टल बॉट इज वन ऑफ द बॉट. जो ऐसे बहुत सारे बॉट्स है जो आगे जाके देखेंगे, जैसे P3DX विच इज इन आवर कैंपस ऑल्सो. तो टर्टल बॉट इज वन ऑफ दैट बॉट जो मेनली स्लैम के लिए यूज करता है. आगे जाके तुम लोग को स्लैम के भी हम लोग असाइनमेंट्स देंगे, तो उसके लिए देखेंगे. एप्लीकेशंस ऑफ रॉस के बारे में वेद. हाँ, cool. तो एप्लीकेशंस ऑफ रॉस के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है. दीज आर द ओनली मेन 4 विच वी हैव पॉइंटेड आउट फॉर यू. तो फर्स्ट इज योर इंडस्ट्रियल रोबोट. तो जैसे ही नाम है, इंडस्ट्रियल रोबोट इज नथिंग बट यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. अगर किसी ने डिस्कवरी चैनल पे वो
डिस्कवरी चैनल पे जैसे वो फूड फैक्ट्री या हाउ इट्स मेड में देखा रहेगा कि बॉट्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन असेंबली लाइन टू अदर असेंबली लाइन। तो वो इंडस्ट्रियल रोबोट्स रहते हैं, उनको प्रोग्राम रॉस थ्रू किया जाता है, रॉस एंड मूव इट थ्रू, और वो भी हम लोग करेंगे। देन मोबाइल डॉट नेविगेशन, जैसे सुयश बोला था टर्टल बॉट के बारे में, तो टर्टल बॉट वॉज ए फर्स्ट बॉट। तो उसी की तरह हम लोग के पास बहुत ही ज़्यादा बॉट्स है। वी हैव हस्की बॉट, वी हैव P3DX बॉट एंड मैनी सच बॉट्स। तो उनको हम लोग मोबाइल रोबोट्स बोलते हैं बिकॉज दे दे आर मूविंग ऑन 2D एंड दे आर नॉट दैट लार्ज। सो तो उनको उनका नेविगेशन भी हम लोग रॉस से करते हैं। या फिर मूवीज में तुम लोग ने वो वैक्यूम क्लीनर देखा रहेगा, राइट, ऑटोनोमस नेविगेशन जो पूरे रोबोट में पूरे घर में जाके क्लीन करता है, वो भी मोबाइल रोड नेविगेशन के अंदर ही आता है। थर्ड इज ड्रोन नेविगेशन। थ्री डी में करोगे तुम लोग तो सुयश आवाज आ रही है ना मेरी? बीच में कट रही थी तेरी। ड्रोन को अच्छा, फिर से एक बार वेट अ मिनट, 2 मिनट। तो अगेन ड्रोन नेविगेशन इज नथिंग बट नेविगेशन इन 3D एनवायरनमेंट। तो जैसे मोबाइल रोबोट नेविगेशन हम लोग 2D में करते हैं, ड्रोन हम लोग 3D में करते हैं। एंड उसके भी अलग फीचर्स रहते हैं। जैसे मैप हम लोग नॉर्मल 2D में हम लोग को वॉल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ते, बस हम लोग को एक लाइन दिखाना पड़ता है, दिस इज़ अ वॉल। बट ड्रोन में वी नीड हाइट्स, करस्पॉन्डिंग की कितना हाइट है उसके हिसाब से कहाँ पे जाना है वगैरह। उसमें भी हम लोग स्लैम करते हैं, लाइक साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन मैपिंग, अगर किसी बिल्डिंग का मैप नहीं पता रहेगा। सो वी एक्सप्लोर, जितना जितना हम लोग आगे जाएंगे वी विल एक्सप्लोर जैसे जैसे आएंगे। तो वैसे ये ड्रोन नेविगेशन भी हम लोग रॉस थ्रू करते हैं। फोर्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द वाइडली यूज थिंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अभी जैसे जो भी सेल्फ ड्राइविंग कार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं टेस्ला और यूडेमी के, तो दे ऑल यूज रॉस। उनमें रॉस यूज किया जाता है। रॉस इज मेनली यूज टू टेक द सेंसर डेटा फ्रॉम लीडार एंड अदर सच सेंसर लाइक IMU एंड GPS and used to feed to the neural network which is made through deep learning। तो उसमें रॉस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, प्लस मैपिंग भी करने में रॉस का ही यूज़ होता है। तो यू कैन सी कि जो भी तुम लोग के ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे कि जो भी कुछ बनाना था तुम लोग को, ड्रोन, सेल्फ ड्राइविंग, तो वो विदाउट रॉस तो इम्पॉसिबल ही था। ठीक है, तो यस सुयश वी कैन शो देम द वीडियो। हाँ, तो अभी ये वीडियो है एक जो अभी रॉस इन एक्शन विच वी से प्रेजेंट क्या हो रहा है रॉस में अराउंड द वर्ल्ड। सो यस प्ले। जितने भी यहाँ पे तुम्हें वर्ड्स दिख रहे हैं ना, लाइक इस सेंटेंस, लाइक कंपनी के नाम होंगे और कभी कभी तुम्हें यूनिवर्सिटी के भी नाम दिखाई देंगे। तो ये बेसिकली वहाँ वहाँ यूज़ होता है रॉस। और इसमें तुम नोटिस करना, एक बार मैंने गजीबो के बारे में बताया था, तो कभी कभी बैकग्राउंड में तुम्हें दिखाई देगा कि वो लोग एक्चुअल में वो रॉस सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में यूज़ कर रहे हैं ये सब जैसे हार्डवेयर। यहाँ पे ही वो तुम्हें पीछे दिख रहा है ना कलरफुल लाइंस, दीज आर नथिंग बट दिस इज सिमुलेशन इन गजीबो। एंड दिस कलरफुल लाइंस आर आई थिंक डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम रोबोट, वो अपना कलर चेंज करते। तो वैसे ही जहाँ जहाँ भी तुम लोग को कंप्यूटर में कुछ रनिंग प्रोग्राम दिखेगा तो अंडरस्टैंड इट, इट इज वर्किंग थ्रू रॉस। ओके फाइन, प्ले द वीडियो। This thing is gazebo itself। So yes, you can continue। सुयश शायद ऑडियो नहीं आ रही मुझे वीडियो की, बट थिंग ओके लेट इट बी, कुछ इसमें ऑडियो का है नहीं वैसे। दिस इज द P3DX bot which we were seeing थोड़ा पहले।
Then this is the self-driving projects. The upper part which you were seeing was the lidar sensor. ऊपर मैपिंग हो रही है वहाँ पे। हाँ, मैपिंग देख सकते हो तुम लोग। ये भी ऑटोनोमस नेविगेशन था। तो so yes, you can end the video. It was enough. ओके तो जैसे देखा ही रहेगा सबने कि काफ़ी ज़्यादा आगे प्रोग्रेस कर चुका है रॉस में। सो दिस वाज बेसिकली नाउ व्हाट आर रॉस जेक्स। रॉस जेक्स लाइक वी हैव केप्ट अ नेम कि हम लोग के जो प्रोजेक्ट्स है, सो वी हैव लाइक कंबाइन रॉस प्लस प्रोजेक्ट्स, रॉस जेक्स। सो ये हम लोग के खुद के प्रोजेक्ट्स है जो हम लोग ने किए हैं अभी तक। सम ऑफ देम आर सीनियर्स टू एंड सम ऑफ देम आर माइन एंड सुयश। Okay, this was my project. This was my project in which I had tried to fly a drone in an environment. Yes, it is ROS is essential. Ubuntu is essential for ROS. It's a necessary requirement, you can say. You will be told in the later half too. तो यहाँ पे I've just moved it using a Python script और यहाँ पे तुम्हें colors दिख रहे रहेंगे. These are nothing but lidar sensors and वो देख ही सकते हो तुम लोग कि डिस्टेंस के हिसाब से उसके कलर बदल रहे हैं एंड इट्स मूविंग अप। तो वी नीड टू वर्क मोर ऑन दिस। इसमें नेविगेशन भी ऐड करना था। वी हैव जस्ट यहाँ पे हम लोग वी हैव टेकन द सेंसर, रीडिंग सेंसर। दिस वाज नथिंग बट अ प्रोजेक्ट डन by our senior. This is a P3DX bot on which a laptop or a Raspberry Pi you can mount anything accordingly, but we have here mounted a laptop to give readings, to give the program to the bot। और ये autonomous navigation हो रहा है हम लोग को एक A point से B point जाने के लिए। This was a project done by सुयश। उसका ये कस्टम बॉट था। उसने ये काफ़ी सही बॉट है, इसका हेड मूव होता है, सब जॉइंट्स मूव होते हैं इसमें। और हम लोग रोबोकॉन जैसे कॉम्पिटिशन्स है जिसमें खुद का बॉट बनाना पड़ता है तो वैसे बना सकते हो। तो ये सिमिलर टू असीमो बॉट देख सकते हो कि वैसा ही कुछ था ये बॉट अगर सर्च करोगे तो। और वन मोर थिंग कि एक्चुअली काफ़ी इसमें ट्रिवियल शेप्स यूज़ किए तुम देखोगे। तो एक्चुअल में क्या होता है, तुम लोग जब कैड के देखोगे तो फिर कैड से जो भी तुम लोग क्रिएट करोगे प्रोजेक्ट, उससे तुम एक्चुअली इंपोर्ट कर सकते हो इसमें। वो एक्चुअली मेश के फॉर्म में होता है एंड देन यू कैन एक्चुअली इंपोर्ट इट, so you can have custom shapes also कि मतलब सिर्फ ऐसे trivial shapes नहीं। लोकेश आगे का कैड का सेशन लेगा तो उसमें तुम लोग यहाँ पे तो सुयश ने पूरा प्रोग्राम खुद से लिखा था हर एक शेप का। अगर कैड में मॉडल बनाओगे तो सीधा लोड कर सकते हो तुम लोग रॉस में। ओके सुयश प्लेड। दिस वाज माय प्रोजेक्ट ऑफ अ सेल्फ ड्राइविंग कार। इसमें मैंने एक कार पे lidar माउंट करके उसको ट्राई किया था नेविगेट कराने का। तो दिस इज ग्रीन पाथ इज नथिंग बट द पाथ विच इज फॉलोइंग। और ये अब यहाँ पे रुकेगा। ओके फाइन। वो वहाँ पे रुक रहा था इसलिए क्योंकि वो ट्रैफिक सिग्नल का वो हो गया था, रेड लाइट आ गया था। तो वो सब डिटेक्ट करता है यूजिंग ओपन सीवी वगैरह भी थोड़ा बहुत, कहाँ पे डिटेक्ट करके कहाँ पे रुकेगा ये सब। और अपना एनवायरनमेंट भी डिटेक्ट कर रहा है अपने साथ में। तो ये दीज आर जस्ट सिमुलेशंस, वी आर ट्राइंग टू डू देम इन रियल लाइफ टू एज सुन एज वी गेट इन कैंपस बैक। द नेक्स्ट थिंग यू सी, दिस वॉज आवर सबमिशन टू द माइक्रो माउस चैलेंज। इसमें हम लोग को मेन गोल था सेंटर तक पहुंचना। तो हम लोग ने वॉल फॉलोइंग प्लस PID प्लस सम अल्गोरिदम, पाथ फाइंडिंग अल्गोरिदम्स लगा कि वी हैड ट्राइड टू रीच द सेंटर ऑफ द मेज। तो लाइक हम लोग ने ये विद इन, मैंने स्टार्ट किया था कुछ मार्च में सीखना। सो मार्च से लेके अभी तक वी हैव डन लाइक ठीक ठाक प्रोग्रेस कर लिए। सो इट्स थोड़ा यू नीड टू गिव डेडिकेशन एल्स इट विल बी फाइन।
Okay, move to the next slide, Suyash. सो आई गेस तुम लोग को अभी तक एक्सपोजर मिल गया होगा कि रॉस एक्चुअल में का पोटेंशियल क्या है और एक्चुअल में रॉस में क्या होता है. तो लेट्स नाउ से दैट व्हाट वी एक्सपेक्ट. तो पहली चीज़ तो बात ये है कि मैं एकदम फ्रैंकली बोलूँ तो रॉस स्टार्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है. तो यू डोंट नीड टू लूज होप कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ में आ रहा है. और हम भी लेकिन बेस्ट ट्राई करेंगे कि उसको ईजी करने के लिए स्टार्ट में. एंड तो तुम लोग को बस इंटरेस्ट दिखाना है. एक बार तुम लोग स्टार्ट में बस टफ लगेगा, एक बार तुम लोग इसमें घुसे रहोगे देन सब कुछ ईजी हो जाएगा. सेकेंड थिंग जो हम तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं वो है तुम्हारा पार्टिसिपेशन. बात यह है कि जितना तुम लोग सीखोगे बाय competing इन कॉम्पिटिशन्स, वो इट इज़ नॉट कंपेरेटिव टू एनी टेक्स्ट बुक थिंग में तुम जो भी पढ़ो. तो बात यह है कि जब तुम कॉम्पीट करोगे यू विल गेट मोर एक्सपोजर, एंड जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपोजर बढ़ेगा तुम्हें कनेक्शंस मिलेंगे. तो कम्युनिटी अभी एक्चुअली रॉस की उतनी बड़ी नहीं है. तो अगर तुम लोग कॉम्पिटिशन्स में जाओगे यू गेट टू नो पीपल हु एक्चुअली वर्क ऑन द सेम टाइप ऑफ थिंग जो तुम कर रहे हो. तो इसलिए कनेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. हाँ. एंड थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस. तो रॉस बहुत मतलब रॉस में बहुत सारी लाइब्रेरी. तो अगर तुम्हें सब कुछ एक्सप्लोर करना है, सारे उसके फील्ड एक्सप्लोर करने हैं, देन यू नीड टू प्रैक्टिस. हर एक चीज़ को तुम टाइम तो तुम्हें देना ही पड़ेगा इसमें. तो दिस इज द थर्ड थिंग दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. फोर्थ थिंग इज ओपन सोर्स. रॉस कम्युनिटी तुम देखोगे ना पूरी, तो इट इज़ बेस्ड ऑन ओपन सोर्स. जिसने जो काम किया जिस पे कि मतलब उसको गिटहब पे डाल दिया, सीधा रिपोजिटरी बना दिया, ताकि मतलब जितने भी रॉस डेवलपर्स हैं दे कैन टेक दैट एंड यूज दैट टू क्रिएट मोर सच प्रोजेक्ट्स जो और कॉम्प्लेक्स हो. तो इसके लिए बेस्ट स्टार्टिंग थिंग ये होगी कि वी कैन पुट सम इश्यूज ऑन आवर गिटहब रिपोजिटरी. जो लर्न रॉस होगा आई गेस उसका लिंक लास्ट में भी दे देंगे. एंड उसमें जो भी इश्यूज होंगे ट्राई टू मेक पीआर जब तुम्हारा एक लेवल हो जाएगा, जब तुम कुछ सेशंस के बाद जब तुम लोग समझ जाओगे कि रॉस कैसे काम करता है एंड यू माइट बी एबल टू सॉल्व सम इश्यूज ऑफ दैट. तो दिस इज द फोर्थ थिंग दैट वी एक्सपेक्ट. और क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम लोग हमसे. तो स्टार्टिंग की तो मैंने बताया कि जैसे लाइक कॉम्प्लेक्स है चीज़ें, तो वी वुड मेक श्योर कि तुम्हें कोई भी इंस्टॉलेशन से लेकर कोई भी स्टार्टिंग के बेसिक कंसेप्ट समझने में कोई भी दिक्कत ना आए. तो दिस इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट. उसके बाद तो ROS.org, रॉस विकी और खूब सारे मतलब बहुत सारा चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, वो तो तुम लोग खुद कर ही लोगे अगर इंटरेस्टेड हो एक्चुअली. तो सेकेंड थिंग इज़ कि तुमने देख लिया होगा कि बहुत सारी इनोवेशन का स्कोप है रॉस में. तो अगर तुम्हें सच में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स बनाने आगे जाके, तो फिर तो तुम्हें ये रॉस में तुम्हें कंटिन्यू करना ही चाहिए. थर्ड थिंग इज़ दैट तुम्हें एक हायरार्की सिस्टम में हम लोग जज करते रहेंगे पूरे टाइम. तो वी विल गिव सम असाइनमेंट्स, और वो असाइनमेंट्स को जैसे ही तुम पूरा करोगे यू वुड गेट सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स. तो जैसे जैसे तुम्हारे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे तुम्हारा लेवल बढ़ता जाएगा. स्टार्टिंग में जो होंगे वो बहुत ट्रिवियल होंगे, जैसे कि उबंटू को इंस्टॉल करना है तुम्हें एंड देन तुम्हें रॉस को इंस्टॉल करना है, या फिर थोड़ा बहुत एक नोड बनाना. तो काफ़ी ट्रिवियल देंगे स्टार्टिंग में. और जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा देन वी विल गेट मोर कॉम्प्लेक्स थिंग. जैसे कि तुम्हें अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई एक फुल ग्रोन प्रोजेक्ट बनाना है, देन इट वुड बी मोर कॉम्प्लेक्स एंड देन तुम्हें उसके हिसाब से पॉइंट्स मिलते जाएंगे. आफ्टर दैट यू कैन गेट टू अ पर्टिकुलर लीडर बोर्ड के ऊपर पहुंच जाओगे, जिससे मतलब हम लोग तुम्हें जज कर सकते हैं कि तुम्हें कितनी पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग है. एंड द लास्ट थिंग इज ऑब्वियसली अगर हम लोग को दिखेगा कि तुम लोग अच्छे खासे लेवल पे आ गए हो, यू कैन वर्क विद अस प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं या फिर कोई भी प्रोजेक्ट जो हमने ले लिया, तो ताकि तुम्हें काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज अच्छी रहेंगी. मैं इसमें क्या ऐड करना चाहता हूँ, जैसे रॉस सुयश बोला रॉस ड्रिल्स के बारे में, तो दिस इज लाइक लेवलिंग सिस्टम. दिस इज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन आवर क्लब, और ये हर एक डिपार्टमेंट अपने करने वाला है एंड दे विल इंट्रोड्यूस देमसेल्फ कि ये लेवलिंग सिस्टम है. सो अभी वही रहेगा कि सबको एक लेवल के हिसाब से ग्रेड किया जाएगा सो दैट यू मेंटेन योर प्रोग्रेस. ऐसा ना हो कि यू लीव आउट द मतलब तुम लोग का इंटरेस्ट छूट गया और फिर यू लीव आउट एवरीथिंग.
तो अगर इंटरेस्ट रहेगा तो यू कैन कंटिन्यू। तो वही है, एक लेवलिंग सिस्टम मेंटेन रहेगा एंड तुम लोग को खुद पता चलेगा कौन आगे है, किसका लेवल है, इतना कितना आगे जाना चाहिए, हम लोग को किस लेवल पे पहुंचना चाहिए प्रोजेक्ट्स और कॉम्पिटिशन्स करने के साथ। एंड अदर थिंग आई नीड टू ऐड कि इंटर्नशिप्स वगैरह अगर है तो फिर ट्रस्ट मी, इंडिया में स्टार्टअप्स काफ़ी है जो ड्रोन्स और फिर मोबाइल रोबोट्स पे वर्क करते हैं। लाइक मुझे अभी भी काफ़ी ज़्यादा ई प्लेन का अगर तुम लोग ने नाम सुना रहेगा तो उससे भी ऑफर्स आते हैं कि यू कैन ज्वाइन एज अ यूएवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो बेसिकली है जहाँ पे तुम लोग अगर जाना चाहते हो तो देर आर अपॉर्चुनिटीज आगे, यू कैन कंटिन्यू द वर्क इन दिस डिपार्टमेंट्स। सो देर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क टू एंड आउटसाइड इंडिया इन अब्रॉड तो काफ़ी ज़्यादा रॉस में प्रोग्रेस हुआ है कंपेयर टू इंडिया। तो वहाँ पे तो पूछो ही मत कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऑफकोर्स मिलेगी विथ अ गुड सैलरी टू। ठीक है, तो यस सुयश यू कैन कंटिन्यू। सो बेसिकली रॉस की अगर हिस्ट्री बता दूँ, 2010 से चालू हुआ एंड तुम लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट हर साल एक नया वर्जन है। तो ये जस्ट बताता है कि कितना तेज़ डेवलपमेंट हो रहा है और कितनी मतलब कम्युनिटी कितनी जल्दी ग्रो कर रही है। तो मेरे को बस यही बताना था। एंड ये बता देता हूँ कि हम लोग रॉस 1 यूज़ कर रहे हैं, रॉस 2 नहीं यूज़ कर रहे हैं। और रॉस 1 में भी हम लोग मेलोडिक यूज़ कर रहे हैं। ओके, मेलोडिक एंड नोएटिक दोनों एक्सेप्टेबल है, बट आई वुड से कि अभी तक कंफ्यूजन मत रखो, मेलोडिक के लिए ही जाओ, ठीक है। एंड प्री रिक्विजिट तुम लोग पूछ रहे थे ना चैट में भी, तो प्री रिक्विजिट एक्चुअली क्या है कि तुम्हें उबंटू तो चाहिए एंड उबंटू में भी इट इज़ प्रेफर्ड कि डुअल बूट करके रखो, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जैसे ही मैंने बताया गज़ीबो, वो तो चलेंगे ही नहीं अगर तुम लोग वर्चुअल बॉक्स में कर रहे हो, बहुत स्लो चलेंगे। तो तुम्हें डुअल बूट करना पड़ेगा। और डुअल बूट कैसे करते हैं उसका हम लोग एक पीडीएफ तुम्हें सेशन के 1-2 दिन बाद दे देंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो। अगर फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर एक मतलब एक चैनल बना सकते हैं हम लोग रॉस का ही, जिसमें तुम लोग डिस्कस कर सकते हो। और ऑब्वियसली हम उबंटू के तो एक्सपर्ट है नहीं, तो तुम लोग एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो अगर जिसको भी एरर आया हो और सॉल्व कर सकते हो। एंड एक और चीज़, उबंटू 18 होना चाहिए, क्योंकि मेलोडिक जो है वो सिर्फ उबंटू 18 पे चलता है एंड उबंटू 20 सपोर्ट्स नोएटिक। तो आई वुड से कि उबंटू 18 इंस्टॉल करो एंड देन उसके ऊपर मेलोडिक करना है, ठीक है। अच्छा, यही होगा साहिल कि जैसे तूने गज़ीबो किया और हैंग इसलिए होगा क्योंकि प्रोसेसर, मतलब जैसे जब भी तुम लोग वीएम पे बनाते हो ना, यू हैव ऑप्शन लाइक कितना रैम एलोकेट होना चाहिए, बिकॉज विंडोज तो चल रहा है प्लस यू आर रनिंग VM2 और उस पर उबंटू चला रहे हो। तो अगर तुम लोग ने ड्यूअल बूट किया ना तो फुल रैम यूज होगा उस जो भी तुम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो, इससे गजीबो वगैरह ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से चलेंगे। टॉकिंग अबाउट ग्राफिक कार्ड, कि ग्राफिक कार्ड बेटर है रहेगा तो, पर नहीं रहेगा तो फिर भी ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल हैव एंड रन सम बेसिक प्रोग्राम्स ऑन इट। And ROS works on processor, but some applications of ROS like Gazebo and Moveit, they need some bit of graphic card. मतलब जितने भी सिमुलेशन होता है ना उनको कभी कभी ग्राफिक कार्ड का थोड़ा पोर्शन वो लोग लेते हैं। तो रॉस में एज सच उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है if you don't have a graphic card, but it is good if you have. Okay, and one more thing, one important thing, nobody is going to try Ubuntu Melodic on Ubuntu 2004, 2010, and Noetic on 1804. It doesn't work. You will get missing packages as error. तो कोई मत, काफी वेस्टेज भी डेटा होगा। तो अगर तुम लोग कोई भी कर रहे हो मेलोडिक या नोएटिक, चूज द अप्रोप्रिएट वर्जन ऑफ उबंटू इटसेल्फ। डोंट थिंक कि अपग्रेडेड है तो यू कैन रन इट इजीली, इट डजंट वर्क। ओके, एंड अगेन लाइक वी हैव ऑलमोस्ट कंक्लूडेड आवर सेशन। अगर किसी को कोई डाउट्स वगैरह आर फ्री टू आस्क, एंड ये हम लोग लिंक शेयर कर देंगे डिस्कॉर्ड चैनल पे। और हाँ, अकॉर्डिंगली लेवलिंग सिस्टम के हिसाब से वी विल प्रोवाइड यू विद कंप्लीट PDFs एंड सेशन के लिंक्स, जहाँ से तुम लोग पढ़ सकते हो, कर सकते हो तुम लोग के असाइनमेंट या फिर प्रोजेक्ट्स जो भी हम लोग देंगे, मिनी प्रोजेक्ट्स। और अगर वो उससे भी नहीं हुआ, स्टिल वी विल हैव अ चैनल जहाँ पे तुम डाउट्स पूछ सकते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली हम लोग आगे आगे जाएंगे और एक तुम लोग का लेवल आ जाएगा, देन वी विल वर्क विथ प्रोजेक्ट्स। ट्रस्ट मी, प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। मैं काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स किया हूँ और मतलब मुझे हर बार वो विजुअल्स देखने में वगैरह, अभी तो सिर्फ मैंने गजीबो सिमुलेशन किया है, रियल लाइफ में और इससे ज्यादा मजा आता है। ओके, एनीवन हैविंग डाउट्स?
Javed, हाँ यस। इन लोग को एक बार उसकी और डिटेल बता दो, लेवलिंग। अच्छा अच्छा, कौस्तुभ एक्चुअली वो है कि ना डिटेल मतलब हर चीज़ हम लोग ने नहीं प्रिपेयर मतलब खुद हाँ, नहीं। डिटेल नहीं, ओवरव्यू कर दो कि सारे डिपार्टमेंट्स के हिसाब से कि उनका लेवलिंग सिस्टम क्या है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि दिस इज लेवलिंग सिस्टम इज द फर्स्ट टाइम वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन रोबोटिक्स क्लब। और लेवलिंग सिस्टम इज नथिंग बट एक मैं आइडिया देके बताता हूँ रॉस के एग्जांपल में। रॉस के डिपार्टमेंट में सिमिलर यही चीज़ होगा बाकी डिपार्टमेंट्स में भी। तो जैसे फर्स्ट तुम लोग का एक असाइनमेंट में दूंगा कि ड्यूअल बूटिंग योर पीसी। और उबंटू भी करना है और विंडोज तो ऑलरेडी रहते हैं सबके इसमें। तो वो जो भी कर लेगा ना, तो एक तुम लोग को डिस्कॉर्ड पे आई थिंक सो यू विल गेट अ लिंक जहाँ पे यू नीड टू सेंड योर प्रोग्रेस। अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट रहता तो उसका तुम लोग को लिंक भेजना है। अगर मान लो ये जस्ट है कि ड्यूअल बूटिंग करना है तो एक फोटो भेजना है कि हाँ उबंटू हो गया। देन जो भी तुम लोग के जो डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर्स है लाइक रॉस के मैं और सुयश हूँ, कैड का लोकेश है और सिमिलरली आगे देखे ही रहेंगे तुम लोगों ने। तो डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर्स है वो वेरीफाई कर लेंगे कि तुम लोग ने जो भी किया है वो सही से किया है कि नहीं। इन द मीन टाइम यू विल गेट लाइक टाइम लाइक 1 वीक कि तुम लोग को अभी ड्यू दिया रहेगा कि हाँ 1 वीक है तुम लोग उसमें कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर तुम लोग ने कर लिया तो सक्सेसफुली हम लोग का एक डिस्कॉर्ड बॉट रहेगा जो तुम लोग का लेवल बढ़ा देगा। अभी तो लेवल 1 बेसिक रहेगा सबके लिए, लेवल 1 से लेवल 2 के लिए। ठीक है। कुछ बच्चे रहते हैं कि दे डोंट स्टार्ट एट लेवल 2, उनको प्रॉब्लम होता है। ऐसा कुछ नहीं, वो ड्यू आगे तक भी रहेगा। तो जब भी उसका लाइक वो 2 वीक्स के बाद भी लेवल 2 आ सकता है, 3 वीक्स के बाद लेवल 2 आ सकता है, बट रेट ऑफ प्रोग्रेस उसका लो रहेगा। ठीक है। पर हाँ, और ये इट्स हर लाइक इसमें वो होगा। ओपन है, तुम लोग कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड कितना हाँ भी आगे जाना है ना तुम लोग जा सकते हो। लाइक हम लोग ऑलरेडी बता देंगे कि प्री डिफाइन कर देंगे कि ये सब लेवल्स हैं। एंड जैसे ही तुम लेवल 1 कर लोगे तुम्हारा लेवल 2 अनलॉक हो जाएगा। तो जो भी ऐसे सीक्वेंशियली वाले हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया देन यू कैन डू दिस, उसमें ऐसा रहेगा। एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, मैं सिर्फ रॉस वाले के लिए बता रहा हूँ कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट कि तुम लोग के पास खूब सारे ऑप्शन रहेंगे कि तुम्हें एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना है। लाइक अगर तुम्हें खुद का कस्टम रोबोट बनाना है, या फिर तुम्हें अगर नेविगेशन सिस्टम में अपना खुद का करना है, या तुम्हें मूव इट के साइड में कुछ अपना खुद का करना है, तो तुम्हारे पास फिर वो बाद में ऑप्शन आएंगे। बट स्टार्टिंग में तुम्हारे पास ऐसे ही रहेगा कि वी वुड अनलॉक द नेक्स्ट स्टेज फॉर यू, जैसे ही तुम लोग अपना फर्स्ट असाइनमेंट कर और लोगे। अकॉर्डिंगली लेवल्स ना, तो फिर जब कॉम्पिटिशन्स या प्रोजेक्ट्स आएंगे तो तुम लोग का लेवल देखा जाएगा कि कौन से लेवल के बच्चे किस किस फील्ड में काम कर रहे हैं। और फिर जो टॉप लेवल्स और उसके अकॉर्डिंगली जो रहेंगे वैसे हम लोग बच्चों को लेके कॉम्पिटिशन्स में वो करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो वही है, ट्राई करना लेवलिंग में अपना हाई रखना, क्योंकि फिर वही है कि प्रेफरेंस उनको ही दिया जाएगा। सो इसलिए तो ये लेवलिंग सिस्टम से हम लोग को भी पता चला कौन एक्चुअली काम कर रहा है, ऐसा ही है। तो दिस इज मेन, तुम लोग पूछ रहे थे ना कि रोबोटिक्स क्लब को कैसे ज्वाइन करना है, तो यही आंसर है, लेवलिंग सिस्टम में आओ और अपना कंट्रीब्यूशन दो इस हिसाब से। तो दिस इज हाउ यू जॉइन रोबोटिक्स क्लब इन शॉर्ट। ओके, डाउट्स है तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे मत पूछो, डिस्कॉर्ड पे वी विल मेक अनदर सर्वर रॉस आंसर्स टाइप से, तो वहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, तो फाइन लोकेश, यू कैन कंटिन्यू दस आगे का सेशन फॉर कैड। Yeah, great. Thank you. एक स्मॉल सा इंट्रो कि लोकेश का कैड का और रॉस का यूज़ कहाँ पे होगा, वो मैं एक हल्का सा वो बता देता हूँ कि जैसे लोकेश अब बताएगा मॉडल कैसे बनाएंगे तुम लोग। मैं छोटा सा बता देता हूँ कि जब तुम लोग मॉडल, जैसे सुयश ने बात दिखाया था ना कस्टम बॉट का प्रोजेक्ट, उसमें हम लोग ने सीधा सुयश ने कस्टम फाइल पूरा लिखा था खुद से, सच बताओ तो। लोकेश मॉडल जो बनाएगा ना वो हम लोग सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं एक URDF नाम के फॉर्मेट में। तो फिर वो एक बार फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया ना, फिर यू कैन डायरेक्टली यूज इट इन योर गजीबो। तो इससे रॉस कैड और रॉस ऐसा लिंक होता है। ओके फाइन, लोकेश यू कैन कंटिन्यू। Yeah. So CAD, actually ROS is linked with everything, right? It is basic, we can say it's the brain of robot. Am I audible, right? या लोकेश। Yeah, thank you.
So today we're going to discuss about a computer-aided designing CAD, right? अब तक तो आपको सबको पता ही चल गया है, मैंने CAD पे डिस्कॉर्ड पे देखा था. This is Asimo and this robot is made by Honda company and it took almost 15 years to design and to make it work, right? So इसकी जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग है ना, उसकी डिजाइनिंग भी इतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड इट इज नॉट इजी टास्क. लाइक आप इसके बॉल सॉकेट्स को देखो, ये जो मैं कर्सर से बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट. या ये जो इसके सॉकेट्स है ना, ये सॉकेट्स बहुत ही पर्पसफुली डिजाइन करके बनाए गए थे, राइट? तो जितना इंपॉर्टेंट आपको रॉस की प्रोग्रामिंग है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट रोबोटिक्स में कैड है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग. अब हम क्यों कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. ओके, so this is the scope of this session. First we're going to talk about what is CAD, then why it is CAD, what's the importance of CAD in robotics, and we're going to shift with CAD software. It is one of the kind of CAD software. Okay, and then we'll see some SolidWorks models which I have made, and then we'll going at question answers. Before that, if you have any questions, I would recommend you unmute yourself and then speak, because I can't see the chat right now. Okay, and anyway we're going to take all your questions at the end. So what is CAD, right? As you know, CAD is just a computer aided designing, and its name itself clarify everything, right? हम जो डिजाइन करेंगे, डिजाइनिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. अपने अराउंड एक बार अपने आसपास नजर घुमाओ, मैं आपको देख नहीं सकता बट एक बार नजर घुमाओ अपने पास, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, राइट? आपका माउस है, आपका लैपटॉप है, राइट? बहुत सारी चीजें हैं और हर एक चीज का एक स्पेसिफिक डिजाइन है और हर एक स्पेसिफिक डिजाइन का एक पर्पस होता है. विदाउट एनी पर्पस कोई डिजाइन नहीं बनाई जाती. लेकिन आप अगर लुक उस डिजाइन को नेट पे सर्च करोगे ना, तो वो एक पर्टिकुलर डिजाइन में क्यों बनाया गया था, उसका स्पेसिफिक पर्पस है और वो स्पेसिफिक पर्पस कैड सॉफ्टवेयर के थ्रू डिजाइन किया जाता है. और आपने अभी जो गजीबो देखा था, तो कैड इज जस्ट लाइक अ सिमुलेशन, बट गजीबो में हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं कि उसका मोशन कैसा होगा, उसकी पाथ प्लानिंग एल्गोरिथम्स कैसी होगी, राइट? बट इन कैड वी एक्चुअली यूज्ड टू डिजाइन द मॉडल. जो भी सुयस का जो मॉडल था आपने देखा था, he has designed using the programming, right? He is using the URDF file he has created. But in CAD we can create live, like you don't have to code anything. You can actually made by like drawing कैसे करते हो पेपर में, वैसे इसमें भी एक्चुअली ड्राइंग कर सकते हो, उसमें 3D मॉडल्स बना सकते हो, राइट? फॉर एग्जांपल दिस इज अ कैड मॉडल ऑफ अ ड्रोन. अभी जो अपने ड्रोन देखा था वेद का, तो वो वेद का ड्रोन एक मॉडल था, सिंपल मॉडल, राइट? उसको अगर एक्चुअल में इंप्लीमेंट करोगे तो वो समथिंग इसके जैसा लगेगा. और ये मॉडल जो है ये कैड में बनाया गया है, इसको भी आप रॉस में इंपोर्ट कर सकते हो. तो कैड has lots of importance in robotics, right? Can anyone know what is this? You can unmute and tell me. Satellite. Sorry? I think it's a satellite. Which satellite? Yeah, satellite. Hubble Space Telescope. No, actually it is Mangalyaan. Mangalyaan. Yeah, it's an ambitious mission, right? और मंगलयान को ऑर्बिट में भेजने से पहले या उसे बनाने से पहले इसका प्रॉपर सिमुलेशन हुआ था कि कहाँ पे कहाँ कैमरा लगाना है, कहाँ सैटेलाइट लगानी है, राइट? कहाँ पे इसके एंटीनास रहेंगे, एवरीथिंग इज सिमुलेटेड. और सिमुलेशन के बाद ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है. तो ये सिमुलेशन जो है वो कैड एनवायरमेंट्स में करते हैं. अगर हम कैड एनवायरमेंट, लाइक अभी तो मैं जो बता रहा हूँ वो केवल एक मॉडल है, जो सैटेलाइट का मॉडल है. Actually in CAD environment you can simulate environment of that, right? You can create mass, you can apply the gravitational force, you can apply the centimeter force, right? And उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि कौन सी trajectory पे वो work कर रहा है, क्या कर रहा है. Everything you can work in CAD. And another term is CAE. As a basic we can say is computer aided engineering, in which you can do everything, right? Now why we use CAD, right? अगर हमें कोई डिजाइन बनानी है और मेरे दिमाग में कुछ डिजाइन है, तो मैं उसको एक्चुअल में बना भी तो सकता हूँ रियल लाइफ में. मुझे कैड पे सिमुलेट करने की कहाँ जरूरत है? दिस इज द रीजन. एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है. इफ यू थिंक अबाउट दिस मंगलयान, तो मंगलयान को कितना खर्चा आया होगा आपको पता है?
someone? It is about no, it is about 800 crores. Total project was 800 crores, right? तो अगर 800 करोड़ की हम पहले मैन्युफैक्चरिंग करें और फिर अगर उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाए तो हमारा 800 करोड़ ऑलमोस्ट वेस्ट हो गया. तो वी कांट टेक दैट मच ऑफ रिस्क. इसलिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है और उसको टू द पॉइंट करनी बहुत जरूरी होती है. दैट्स व्हाई वी यूज CAD सॉफ्टवेयर सो दैट वी कैन सिमुलेट, वी कैन actually imagine whatever we are thinking, we can implement everything whatever, like अगर सैटेलाइट ऐड करना है, सैटेलाइट के अंदर आपको अगर एक सोलर पैनल ऐड करना है तो सोलर पैनल कितने वॉट्स का होगा, क्या उसकी डिजाइन होगी, क्या उसके इफेक्ट्स होंगे, उसके फोर्सेस के इफेक्ट्स होंगे, वो सब कुछ हम कैड में डिजाइन कर सकते हैं और हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, राइट. अब कैड जो है वो बहुत पुराना नहीं है, 1960s के बाद ही कैड आया. तो 1960 से पहले क्या होता था, 1960 से पहले कोई भी डिजाइन बनने से पहले हम लोग हैंड रिटन ड्राइंग्स करते थे, राइट. आप हाथ से, अभी आई थिंक इंजीनियरिंग विजुअलाइजेशन में आप लोग कर रहे होंगे, यू यूज्ड टू मेड फ्री स्केचिंग, राइट. हम पहले जो डिजाइनिंग करते थे वो स्केचिंग से करते थे. वी आर द इंजीनियर्स, वी यूज्ड टू क्रिएट द स्केच, वी कैन देन गिव टू द मैन्युफैक्चरर, ही विल मैन्युफैक्चर बाय सीइंग दिस, राइट. बट so I will just talk about the drawings, right. Basically drawings are of two types, right. We can say it's 2D and 3-dimensional. More than 3-dimensional we can't draw. तो 2-dimensional में क्या होता था कि हमने अगर लाइक रियल लाइफ मॉडल्स जो होते हैं वो 3D मॉडल्स होते हैं, और 2-dimensional अगर 2-dimensional कोई मॉडल है तो उसको विजुअलाइज करना 3D में हर किसी की बस की बात नहीं है. एज अ नॉर्मल मैन्युफैक्चरर यू कांट विजुअलाइज दैट, right. So you need very high visualizing power to visualize 2D model into 3D. इसकी वजह से भी कई बार डिफेक्ट्स हो जाते थे. मैंने इंजीनियर्स ने कुछ सोच के बनाया कि नहीं इसकी डिजाइन ऐसी होनी चाहिए थी, मैन्युफैक्चरिंग ने कुछ गलती कर दी, उसने डिजाइन गलत बना दी, तो इट विल कॉस्ट अ मच, राइट. और 3D डिजाइन पॉसिबल नहीं है हमारे पास एक 2D पेपर में ड्रॉ करने के लिए. लेकिन आई वांट टू गिव एग्जांपल. दिस इज अपोलो मिशन, राइट. इट इज एन कैप्सूल ऑफ अपोलो, राइट. और आप इसमें देख सकते हो कि ये 2D ड्राइंग बना के किया गया था. उस समय कैड सॉफ्टवेयर इतने यूज में नहीं थे, तो उन्होंने हैंड रिटन ड्राइंग हाथों से बनाई थी सारी ड्राइंग्स. और देखते हो कितना कंजेस्टेड है, हर चीज कंजेस्टेड है. और सबसे बड़ी बात है कि इसमें इतने सारे कंपोनेंट्स हैं कि वो लोग हर एक कंपोनेंट को लेबल भी नहीं कर पाए थे. तो कैड इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी एसेंशियल. विदाउट कैड यू कांट डू मैन्युफैक्चरिंग इन दिस न्यू वर्ल्ड राइट नाउ. वो उस समय बहुत बड़े लोग थे जिन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में विजुअलाइजेशन करके अपना काम किया था. At current today it is not possible that we can draw something complex shape by hand and then we can give to the manufacturer, he will made it. It is not possible. Simple shapes we can do, but complex like this Apollo capsule we can't do this, right. CAD in general एक engineering model है, right. एक आप design engineer हो तो CAD you can use it. But what is the importance of CAD in robotics, right? I'm going to show you some models. I would prefer that you will give the answer of these models. Can anyone know what is this? Curiosity. Yeah, it is something like Curiosity. It is now actually Perseverance, which is sent a few months before by the NASA to Mars. It has not reached yet. तो ये उसका CAD मॉडल है. They have made a very complex design, very complex shape, right? लेकिन उससे उन्होंने कॉम्प्लेक्स शेप बनाने से पहले उन्होंने CAD मॉडल बनाया था. इफ यू टॉक अबाउट रोबोटिक्स, अगर आपको कुछ भी बनाना है, अगर कोई रियल लाइफ रोबोट बनाना है तो सबसे पहले आपका वर्क होता है उसकी डिजाइन बनाओ, राइट. आपको उसका डिजाइन बनाना होगा, फिर उस डिजाइन के ऊपर आप अलग अलग एल्गोरिथम्स, रॉस सिस्टम्स का यूज कर रहे हो, कुछ सेंसर्स का यूज कर रहे हो, अलग अलग एल्गोरिथम्स को यूज करके उसे मूव करा सकते हो. बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर डिजाइन. आपके पास अगर डिजाइन ही नहीं होगी नए रोबोट की तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते. तो मेकिंग अ डिजाइन, अगर एक रोबोट है, लाइक इफ आई टॉक अबाउट दिस रोबोट, राइट, दिस इज असीमो की डिजाइन एक ही है, बट इसके ऊपर मल्टीपल एल्गोरिथम्स वर्क करते हैं और आज भी लोग उसके ऊपर एल्गोरिथम्स बनाए जा रहे हैं. तो बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग कैड की है कि आपको रोबोटिक्स में कैड, आपको हर चीज के पहले एक बॉट बनाना पड़ेगा और उस बॉट को सिमुलेट करने के लिए हम कैड का यूज करते हैं, राइट. कैन एनीवन नेम दिस वन? व्हाट इज दिस? This is a Yumi robot.
and it is made by ABB company. We can't say it as a robot. It is actually a cobot. It has this specification that it can work with humans, right, along with humans. और इसमें विजुअल सेंसर्स लगे हैं. अब इसमें कैमरास लगे हैं, क्या यहाँ पे कैमरास लगे रहते हैं, और इस कैमरास के थ्रू ये अपने ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है और अपना वर्क करता है. राइट, इसमें कोई वो नहीं होता कि प्री डिफाइन आपने एल्गोरिथम यूज कर रखी है या कोई सेंसर्स यूज कर रखे हैं. राइट, ये भी उसका मॉडल है. तो सबसे पहले उन्होंने डिजाइन बनाई, उसके बाद उन्होंने अपनी एल्गोरिथम अप्लाई की. तो डिजाइनिंग इन रोबोटिक्स इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. So that's why we use CAD in robotics, right? So CAD software, if I talk about CAD software, there are nowadays a lot of CAD softwares are there, out of which Autodesk, AutoCAD, right? These are most valuable, I can say, CAD softwares, and these are used in market a lot. Most of the companies use these software. Okay, CATIA is one of, I think CATIA is not in this pic. So CATIA is one of another software. Okay, what we're going to use is this SolidWorks. Why we use SolidWorks, I'll tell you in later, right? But what we're going to use throughout our campus, it's SolidWorks. Okay, and there's another CAD software which is known as ANSYS. We'll also going to use in SolidWorks. What we do, actually we used to make our model in SolidWorks, but model also needs analysis. Whether कि मैं कहीं पे अगर like अभी जो यूमी रोबोट था, यूमी रोबोट में किसी चीज को अगर वो ग्रिप कर रहा है तो उसमें कितनी फोर्स लगानी है, उसे कितनी ग्रेविटेशनल पुल होगा उसका, तो वो सारी चीजें भी अपन सिमुलेट करते हैं. फॉर दिस सिमुलेशन वी यूज ANSYS. ओके, and this Altair is another software. Okay, it is basically a package of everything. You can draw, you can simulate. We're not going to use, but it is like these CAD softwares are actually too costly. Right, Autodesk, if you go to the website of Autodesk will take 11,000 rupees per month, and for a year he will take from almost 88,000. Right, CAD softwares are costly. So we're going to use SolidWorks. Okay, there are a lot of reasons why we use SolidWorks. So SolidWorks is a CAD software which is used for designing. Right, in SolidWorks we can make 3D printers, like 3D drawings. If you see, I talked about the drawings, right? In SolidWorks you can make 3D as well as 2D drawings, or you can make 3D model and then you can import it as a 2D drawing. So it provides a lot of things, right? And this SolidWorks is used by the designers, mostly engineering designers, right? Designer means there are a lot of designers, but we as an engineering designers, we use it as a students, and we all use it, right? SolidWorks models are also used for 3D printing. Like अभी जो नया एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलप हो रहा है और बहुत ही फास्ट स्पीड से डेवलप हो रहा है, दैट इज 3D प्रिंटिंग. हम किसी भी मॉडल को बनाए, 3D प्रिंटिंग में बहुत ज्यादा फायदा होता है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स शेप को बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं, और उससे पहले हमें उस कॉम्प्लेक्स शेप का एक प्रिंट बनाना होगा. लाइक अगर आप नॉर्मल प्रिंटर की बात करते हो तो हम उसमें पेपर वर्क करते हैं ना, लाइक कुछ टेक्स्ट टाइप किया, लाइक मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया, उस टेक्स्ट को मैं प्रिंट दे सकता हूँ. लेकिन अगर आपको पूरा मॉडल ही बनाना है तो उस मॉडल को भी आपको कुछ तो बनाना होगा ना सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में, उसके बाद आप उसका प्रिंट दे सकते हो. तो 3D SolidWorks में आप मॉडल बना सकते हो और उसको डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हो. यू डोंट रिक्वायर एनी अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स शेप को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, बट यू कैन मेक इट डायरेक्टली, राइट? There are some pros of SolidWorks. I'm not going to discuss in detail, but these are the two most important pros. That's why we use SolidWorks. SolidWorks has auto shape tool. अगर मैं SolidWorks में एक लाइन बनाता हूँ ना, अगर मुझे सर्कल की रिक्वायरमेंट है तो SolidWorks अपने आप ही सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा. I don't have to convert. It is, you will find in SolidWorks. I don't know whether this tool is in CATIA or not, but the SolidWorks tool is very fine and very easily you can make this SolidWorks models, right? These are also two things I think which has these two are in every software. I must say that one of the pros why we use SolidWorks is that SolidWorks is actually licensed by our institute. Our institute has its own license. Our institute bought this, and you can access all SolidWorks tools once you can come in campus, right? That's why we use SolidWorks, and we also have a license of ANSYS. You can use ANSYS Workbench. Okay, our institute had bought it, right? Now I'm going to show you some interesting things.
let's go to SolidWorks interface. Till point, if you have any doubt, you can ask. Can anyone identify what is this? Hello. Ball Sorry. bearing. Yeah, ball bearing. Ball bearing. Correct. We used in our cycles and everything. So this ball bearing is made by me in the SolidWorks. Before going to ball bearing, I would like to introduce this. This is SolidWorks interface, right? It has a lot of tools. You can see that here's assembly, layout, sketch, evaluate, and many more tools are there. I haven't included in this. So this is SolidWorks tool, and over the subsequent period of time, you will learn how to make. I'll share some resources from where you can learn how you can make this, right? Yeah. So this is ball bearing. Okay, I'm going to show you another complex thing. What is this? There are some mechanical engineering students, right? You can identify what is this. This is actually a pressure plate, right? It is used in many machinery operations, right? And this is also simulated in CAD model. These are very simple design, right? It will not take anything. It is bolt, a screw, sorry, it is not a bolt, it is screw, right? And it is also very simple. And actually, if you see the screw manufacturers, they will first design their part in CAD, right? A screw is not easy to manufacture actually. It has very complex. I have made a one kind of screw. There are many kinds of screw. If you see the design of screws, there are a lot of different designs of a screw. Like if you see this spiral, this is a triangular spiral. You will find many spirals in market. So it is also very complex, but you can made it in SolidWorks, or I can say in general in CAD, any CAD model. What happened? Oh man. This is an L-shaped pipe. Okay. This is also whatever I'm showing you is you will look like it's simple, but it all these things have used different tools of this SolidWorks, right? You can see it have make a L shape, and if I'll show you one thing, like this L shape is actually used by very simple design. Like this is the only thing which you have made by your hand, and this has made this thing for you. So this is the advantage of SolidWorks, or I can say in general CAD, which will very easily you can draw anything, any kind of shape. I'll show you another thing. This is actually a 3 pins which we use earlier days. Okay, and what I was telling about the background, right? This is the background. In the case of Mangalyaan, people can also simulate the environment in which it will going to work. Actually, it is a wall of a room. You can't, if I will zoom out, you will not see anything, but you can actually simulate this in CAD. This is an incomplete model. It is actually a webcam, eyeball webcam. It is a camera and it is incomplete. So let's forget about it. Let's go to the next. Yeah. These are the spur gears, right? And these gear systems, if you talk about robotics, we use a lot. If you want to make a real system, you have to use gear systems, right? If without gears, you can't do. Like if you talk about a robotic arm use lot of gears because every motor has its own power. Right? If you have to reduce your power, if you have to increase the torque of that, you have to use gears, and these gears are actually simulated in CAD software. Right? This is a set of gears, and its gear ratio is 4:1. You will learn in the subsequent period of time. These gears are very important in every system. Let's talk about another thing.
What is this? Can you identify? Hello, are you here or? Piston. Yeah, Shaft. it is. Shaft. No, it is not shaft. It is piston. This is piston, and these pistons we use in engines. If you see the engine of a car, you may find this is a one piston, right? It's in car engine piston. These all things are actually, these pistons are manufactured by different manufacturing processes. But once we have to draw in CAD software so that it can, if like it has its own specific design. If you see the curve, this curve plays a very important role. So these curves, their dimensions, their radius, everything is very important to simulate. This is actually, it is a gearbox, right? It is a gearbox of off-road vehicle. Like, you can imagine that it is gearbox of your car. Okay, if you change the gear, it in this model you can't. Let's see. Yeah. So this is the inside of the gearbox. Whatever the gear set I have shown you in the last graph, these gearbox, these are actually assembled in this gearbox. This gearbox, I think every mechanical design you can make it. Can anyone identify what is this? I think you might not be. You use scooter and scooty, Activa and all things. Actually, this is CVT, and these CVTs are used in scooty, right? If you talk about a scooter, the old age scooter, these CVTs are used, and the CVT has specific thing like you don't have to change the gears. It will automatically change. Yeah, I can't simulate here, but this bottom, if you, as you increase the speed, this will come out, and as you decrease the speed, this will go inside. So this is a CVT which we use in automobile industry. What happens here? Something is hidden. This is a DC motor, right? I think you all have played with it very well. Okay, this is model of DC motor. I don't know where the last part has gone. Yeah, well, let's forget about it. This is DC motor which is simulated in CAD tool. Okay, this is, you can actually rotate this DC motor. So I'll show you one thing. Okay. This is the interior of DC motor, and you can rotate it in CAD. Yeah, you can see this CAD provides an actual view. You can make whatever you can see actual, you can made in this CAD software. CAD simulations plays a great role. I haven't showed any robotic model, but these things are important. This is a laptop of Asus ROG G series, right? It is actually simulated by me, and it is also available in open source. You can see how precisely you can make models in CAD, and we use SolidWorks because SolidWorks is simplest one in which you can shape these models. All other software says, if you talk about ANSYS is very complex things. You can't make directly. This is a headphone, right? These one more thing I want you to introduce, like if you see how much cost this headphone will be. Can anyone? Sorry? Around 1,000 or 1,200, you might say, right? But actually, this headphone use the same tool. Almost everyone, let's say if you change a microcontroller, then everything will be same. But design of headphone, I will actually increase the price, right? That's why we can say why designing is very important. Okay, and these designs are, people have tried their design, like I have made this model. Now if I want to change something, I can change this model. I can increase, I can make more attractive. Okay, more suitable to the humans. I can make it. So these things are very important. That's why designing is very important. And I can show you actually these components. Yeah. So these components, this headphone is actually movable. You can see these components are movable, completely movable. This has also a degree of freedom. This is also movable.
right? So everything is possible. Whatever you can think of, that things are possible to make in CAD models. This again comes a ball bearing. That's not discussed. Go to whatever I have left. Okay. So I think it finds you interesting, right? These. Yeah. So this is what we have talked about CAD, and I will share this slide with you, and I have put these models, whatever I have shown you in this slide. These are what we can design. Any Q&A, right? If you have any questions, you can take now. Guys, any questions on CAD? Any question on CAD in general, robotics, designing of everything? Actually, CAD is not just used for robotics. It can use for any mechanical design. So Sahil is asking when we will start doing it. Very soon. Even I have shared the installation, cracked version of this SolidWorks with you. In your mail, you will find it. You can install it. There is some videos also, YouTube videos. You can watch it, and how to download every guidelines are given in that. Okay. Any missiles in And, ROS with? Okay, one more thing, your leveling system starts as soon as the intro session of each of the departments soon. So we will soon release our topics. Even Lokesh will start releasing his um, level one topics. So we will start soon. And any missiles with ROS, like I don't think we use missiles with ROS. ROS is actually used for automation. Missiles don't need. No, not missiles. CAD don't require GPU. If you have your system has RAM of 4 GB, you can work. Okay, but with 4 GB, I think you can't use any other thing. Like you can't use any other program. Only CAD will going to work. For ROS, I don't know. ROS also I've already told. Okay, GPU is not a necessary requirement, but it's preferable that you have at least 2 GB and at least i5 processor, so it runs better, because ROS is something means many programs run at one time, many nodes, gazebos, simulations, so it becomes heavy. Yes, CAD and robotics will have independent ratings and rankings. Prashant, CAD, yeah, you can use CAD on Windows. Okay, CAD doesn't require any preferable operating system, and yeah, without GPU, you can use it. But just you need 4 GB RAM. It will consume 4 GB RAM once it will start. Any other question, guys? We have our senior with us also. Costco is our senior. You can ask them. Even if you are not comfortable in asking in chat, we have our respective Discord channels for each of the departments. So there also you can have conversations with seniors. Lokesh, can you answer that? Yeah. Yeah, definitely. CAD is inclined towards mechanical stuff, and actually, yeah. So CAD is actually a mechanical, used for mechanical, but robotics in general, it's not a individual branch. Robotics is a combination of 3 branches we talk about. This robotics, computer science, and electrical engineering. So for robotic designs also we use CAD, and no doubt CAD is inclined towards BAHA. Correct. You are right. BAHA has a main role
like modeling and like there is a big modeling team for Baha. Yeah. And you just don't like we don't use CAD just in Baha. We can now look around you. Whatever you can see, everything has first simulated in one of the CAD software, and then they have come in market. And going to other softwares like MLDL, these are also integrated for robotics, like the neural network I talked about in self-driving. So the neural network, you make it through the machine learning techniques, which will be explained later in later sessions. So in short, whenever a project is done, it is done with the help of all the departments together. Later, as we progress, so we will be having long projects where we will be working with all the teams simultaneously. So in that case, according to leveling system, we will then know which person is doing in which department the best. Okay, fine. So if, okay, Lokesh. No. CAD is something different. I don't know what Tinkercad is, but yeah, CAD is different. Just a minute. Yeah, definitely. The simulation can be done in SolidWorks as well as in ANSYS. But actually, what we used to do in our campus, that we used to make a model in SolidWorks, and then we use this SolidWorks. We import this SolidWorks in ANSYS for the analysis purpose. Yeah, you can use SolidWorks for free. Right now, I share the whatever I have shared. This is a cracked version, so we will not find access to all the tools of SolidWorks. But once you will return to campus, you can use the SolidWorks for free within the campus premises. We have our license with SolidWorks and ANSYS. Okay, if you yeah, it will work. Don't worry, it will gonna work. Like whatever I have shown you is actually the real view pick. You will not find real view pick, okay, in XMax, but you can find the model like whatever I shown you one model of this Asimo in between the slide. You can view this in like this kind of model, right? But एक्चुअल में वो जो मॉडल है रियल व्यू आपको नहीं मिलेगा, राइट? फॉर रियल व्यू यू नीड ग्राफिक कार्ड. You Sahil, you have to go to campus in order to get access or use VPN. I must say. Outside of campus, you can't access it. First, Prashant, you first install the SolidWorks. I'll share the subsequent tutorials. Okay, you can start exploring. Your first task is now you have to install this SolidWorks, this labeling system which Ved is talking about. So this is your first task, that you have to install SolidWorks in your system. It's not easy to install. Okay, I have shared the YouTube videos also. You can your first task is to install. For cracked version, I shared 2018 version. Okay, and with our campus, we have 2012 version. But I think campus might have upgraded now. I don't know, but when I was in campus, we are using 2012. Cool. If you don't have much doubts, we can end the session. Okay, fine, Lokesh. Yeah.